3 weeks back, I think, Munir Saab called me on fine morning and he told me that, Dr. Saab, you have to keep 50 bed for Badkal patient at Indiana Hospital, Mangalore. I didn't understand what he meant by that. I said, okay, what is the problem? I asked. Then he said, a lot of patients are coming with COVID now. We don't know how to manage this. I said, you don't have to worry much because they let them come. Whenever they come, we will give them bed. And then the real problem started. When we are admitting in the private sector, we are admitting COVID patients. Then we get a lot of sick patients from COVID, very, very sick patients from COVID. Then I understand that the problem is we have to deal it differently. Just making bed at Mangalore is not enough. And our respected commissioner is here, Qazi Saab is here, all their presence. We planned an idea of, instead of coming to Mangalore, let them come out of their house first, not Mangalore. Let them come out and identify one area where we will identify their problems, whether they have to come to Mangalore or not. See, we have to understand that 95% of the people doesn't require any treatment. कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही कम होता है. बताओ, अच्छा बाकी 5% है ना, हाँ 5% बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है. So they have to identify. इतना जल्दी डॉक्टर के पास जाके at least 3 to 5 days monitor कर सकता है. You will get a benefit out of this. Those who really require ICU, that people we can shift to higher centers. But those who doesn't require ICU, 3 to 5 days monitor karke, we have a good doctors team here, Dr. Anas and Dr. What's it? I forgot. Huh? Minu and Dr. Nadir Saab. And our nurses team is there. And who is your head? Brother? Sajib. Okay. And then they have all, I arranged from Indiana Hospital side through my connections. I said we are not doing for a business, not a profit listing. And Arshad Saab and Munir Saab along with the Tanzim and other, I don't know, other 2 more organizations. Yeah, the 3 organizations together they planned it. And you know, there are a lot of lacunae will be there. It will not be like a hospital. It is a COVID care center. It is not a hospital. A lot of problem will be there initially, but we will try our level best. We will try our level best to improve day by day. And we have ICU, we have intensivist, we have physician, we have cardiologist, we have nephrologist, we have all specialty in Indiana. Daily, every day, 3 times on online call as well as online video call, we will be conducting every day to see each patient and to update each patient and to give direction to doctors and nurses for the betterment of the patients. This is how we are planning. So my humble request to the Munir Saab and Arshad Saab, most important here is there will be a lot of chaos and problems will be there initially. But make sure that more important people of this part should stay here at least for 1 week to 2 weeks. And one manager you have to give 24/7, one point of contact. They have to be here every time. If daytime one manager, nighttime another manager. Because the doctors and nurses will tell only one person. He has to coordinate with other people. Because it is a life and death situation. You can that time, okay, that person is not there, but mobile is not reachable. These doctors doesn't know what to do. Suppose an ambulance driver is not there. What these people will do? So your manager is most important more than doctors. And one point contact. That is very important. Yesterday night they were telling somebody called them and they don't know whom to contact. They were contacting all the numbers, but unfortunately night the number is not reachable. But of course it is not started. So when we start this, you have to arrange this, very important. Second thing, no patient should allowed to go to their residential areas, the doctors. Some people yesterday went to their residence directly. It seems, please make sure that some securities that don't allow. Doctors will be available here 24/7.
They are running a 12-hour shift. So they will be available. No need to go there. So any problem is that they can come here. And any other major problem is there, the doctors or Arshad will contact me, and from our hospitals here we will support all possible supports. And our intention is, please don't be scared of this COVID, and COVID is completely curable disease provided you identify early. And in our hospital there are more than 300 people treated now. Out of that, 6 patients have died. All 6 patients died within 24 to 48 hours, except 2-3 patients, because they come so late. So early recognition, early treatment is the key. Definitely nothing will happen with the disease. Please, I wish you all the best, and I think all duas and prayers will be with us, and our police superintendent also will support us. Other DC is not come, no? DC is Arshad Saab's friend, and he will anyway support us. And so all other authorities, madam, Dr. Savida is also come, and I think all the best for this new venture. Thank you very much. जिस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं वो कोविड-19 के जो मरीज़ होंगे, खुसूसन जिनको सांस वगैरह लेने के मामले में तकलीफ़ वगैरह होगी, उनके लिए यहाँ पर जो है इंतज़ाम किया गया है। ये तंजीम और अतीकुर्रहमान साहब, अरशद साहब, INF वगैरह की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और इस सिलसिले में बहुत कोशिश की है, और काफ़ी महीनों से इस सिलसिले में काम हो रहा था, लेकिन हमारे बहुत से अहबाब सही तौर पर उनका ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, जिस तरह से कहा गया कि वो मैंगलोर अपने वक्त पर नहीं पहुंच सके, उनका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इन्होंने यहाँ पर जो है इंतज़ाम किया है। मैं सबसे पहले इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत बड़ा इक़दाम किया है और बहुत आपने जो है ऐसा काम किया है जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना की जानी चाहिए। एक बात हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर जितने लोग बसते हैं, इनके मुताल्लिक़ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल-खल्क़ु इयालुल्लाह, मखलूक जो पूरी की पूरी अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अपनी इस मखलूक में वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के जो है बंदों को फ़ायदा पहुँचाने वाला। इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम कोई नहीं। अल्लाह की जो मखलूक है, इंसान, जानवर, जिनको भी हमारी ज़रिए से फ़ायदा पहुँचता है, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मकबूल है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। ये डॉक्टर लोग अपनी लाइन से काम करते हैं, दूसरे लोग अपनी लाइन से काम करते हैं। जिन लोगों के ज़रिए भी अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचता है, अल्लाह के नज़दीक वो बंदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। मैं फिर एक मरतबा इन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस काम में पूरी मदद और नुसरत फरमाए, और जिस अज़ीम मकसद के तहत इन्होंने ये काम शुरू किया है, अल्लाह ताला उस अज़ीम मकसद में हम सबों को कामयाबी अता फ़रमाए और हमें ज़िंदगी भर अपनी रज़ा और खुशी के काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दुआ। बिश्रली सद्दी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ काज़ी साहिबान, Dr. Yusuf Kumble, my dear friend, and dignitaries and all other people, and my dear friend Atik Muniri and all other people who have attended here. I welcome to you all on this occasion of opening of this center to take care of the COVID patients in Bhatkal. I will talk in Nawaiti so that you spoke in English, and you so many patients here, you also know Nawaiti now. Okay. एक मास 2 मास जाले आम्ही जिता गावात टुकून पेशंटे मोगलोर येवंक सुरू केले, आनी आमी थिंगा मोगलोर जमातीची माणसे जे रखमान ते थिंगा कामा तर हे जाले, हॉस्पिटलात वचून अटेंड करूं केले, तेता आमकां भली एहसास जालो की भली क्रिटिकल जाला मग माणसे मोगलोर येते वाटेत। सॅच्युरेशन त्यांचो निक्केपर्यंत कम जाला, मग याने 92 पसून कम येता सर हॉस्पिटलात वचूंक, मगर हिंगा
40-50 बल्कि थोड़े सिट्युएशन 30-35 सर जाला मग आयल्लो केसेस आहे हे इशी जावन तितले वक्ता भितर कोविड बल्लान लंग्सा इफेक्ट जावचे मगर हेजे इलावा एटलो सॅच्युरेशन कम जालान ब्रेन डॅमेज जाता बिजी किडनी लिवर हार्ट ते सवस मल्टी ऑर्गन इफेक्ट जाता ता सबब आमी आमचे INF टिमेसरीन आमी मोगलोर आणि बँगलोर आमचे सगळे INF टिमेसरी आमी डिस्कस केले की इशी हे हालात जाते असे गांवात टुकून माणसे इसले भली सिरियस जाला मग गांवात येते वाटेत आमी काहीतरी करून गांवा भितर एक इसलो सेंटर हे करू कास की आमी इनिशियलीकच हेंका आमी तांकां ऑक्सिजन प्रोवायड करू कास या डॉक्टराची का फॅसिलिटीज करू कास ते आमी करया आणि ती प्लॅनिंग आमची चलती होती आमी भल्ली सवस ऑप्शन्स पळयले वेलफेअर हॉस्पिटला भितर करूचो आमी ऑप्शन पळयले बी दुसरे कडेन दोन चार ठावे पळयले मगर थिंगा सुटेबल जाल ना हेका भल्लीस चिजो हेजे सबब काज जाता आखिर आमी डिसायड केले आणि हो ठाव आमी भाडा घेतले INF भाडा घेतले तेच टायमार आमचे आतीक साहेब को हिंगा चार्टर्ड फ्लायट घेऊन दुबय टुकून आयलो आमी तेजे सरीन को हो तस्किरा केले आणि समूह मिळून INF तंजीम आणि खलीज काउन्सिल मिळून आमी अंदरुनी जमात बैरुनी जमात आणि तंजीम तरीन मरकजी इदारा अशेकच समूह मिळून आमी हे काम आगे बढोयो आणि आमची गावी माणसे जो काही आपले घरे टुकून बाहेर येते नाही इलाजा सब येते नाही मोगलोर आयलान काय भल्ली खर्च येता ते बीन थंय आपलो इलाज टायमार करते नाही तासब आमी हे जाले की गांवातकच आमी हो सेंटर हे करून इन्शाल्लाह आमची गावी माणसं इनिशियल स्टेजा परकस तांकां जे काही हे करू का क्रिटिकल काही जाले अल्ला ना करो इशी जाले जावचे को नाखा जालान तांकां मोगलोर शिफ्ट करूचे नातलान हिंगाकच इन्शाल्लाह सावध हे करून जातले येता आमचे 3 डॉक्टर्स वाटेत सगळे नर्सेस टीम एक्सपिरियन्स ही टीम जो आयला हा 9 इयर्स 8 वर्षे 7 वर्षे निके हॉस्पिटला भितर एक्सपिरियन्स असली टीम वाटे ते जेनको हँडल करून इन्शाल्लाह इजी जातले डॉक्टर युसुफ कोंबले ओवरऑल एक्सप्लेन केलो हो आमचो मकसद का हे रखमान आमी परेशान होते की इशी एटली क्रिटिकल सिच्युएशना भितर माणसे येतात आणि आमकां थिंगा लास्ट भितर डॉक्टराच्या हातात कोण काय राहणार तसो इनिशियल स्टेज भितर हे करून इन्शाल्लाह आमचे आवाम आणि आमच्या कौमा सबब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जावन जर्रा बीन कोणा सॅच्युरेशन कम असलान थंय हे सेंटरा भितर येवन आपलो इलाज करो मगर हेजे सबब आमकां तुमचो सम्माचो एक कॉपरेशन काज सम्मा जे काही कोणी घरान करे कोणा जरा धग असे खोकलो असे काही सिम्पटम्स आहे आणि त्यांचं सॅच्युरेशन कम आहे दक्कन हे सेंटरा भितर येऊन कास आणि आपलो इलाज करू कास अल्लास करीन तेजे भितर तुम्ही हर गावी माणसे तुम्ही आमकां साथ देऊ कास आणि हे आम्ही इन्शाल्लाह हे करून अल्लान जालान आमचे सबब अल्लाची कोण मदत राहतली आणि हे आम्ही करून जल्लाटे जल्ला आमची कौमी भोवडाची सेहतेचो ख्याल धरून त्यांचं जीव व्हरोवचे आम्ही भरपूर कोशिश करूचे बीजी हयात मौत आमकां कळता आमचो इमान आहे अल्लाच्या हातात तो कोण तो वक्तार येवचे येताकच मगर आम्ही आमचे तर्फीन भरपूर कोशिश करू कास हे टायमार आम्ही कोशिश करनातल्यान आमची कौम वंगी बेसलान आम्ही को अल्लाकडे जॉब दे वाटे आणि का आम्ही सांगतले तुमचेकडे सवस हे होती सवलत होती आणि तुम्ही काही केलं नाही तुम्ही वंगी तमाशा पलते बसले तरी आम्ही अल्लाच्या दरबारात तर गेला आम्ही का सांगतले तासाब ही भल्ली जरूरत समूह मिळून आगे बढू कास आमची तंजीम वाटे बाकी सवस आमची जमातुल मुस्लिमीन खलिफा जमात आणि बाकी आमचे सवस इदारे समूह मिळून हे कामात सपोर्ट करून आणि कॉपरेट करू कास आणि हेंका इंडिपेंडेंटली काम करूच्या सब हेल्प करू कास आणि तांकां सांगलाटे नरमे सरीन तुम्ही त्यांचे सरीन भले एक फ्रेंडली हे करून तांकां ट्रीट करा ते सवस मी एक्सप्लेन केलाटे इन्शाल्लाह तुमचो कोण कॉपरेशन आमकां कास ही एटलीस्ट आपण सांगू चाहता शुक्रिया
शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि INF ने जो तख़य्युल लेके सामने आए उस पर तंजीम और BMKC ने लब्बैक कहते हुए आवाम की खातिर, इंसानियत की खातिर और जो पेंडेमिक सिचुएशन है उन हालात को सामने रखते हुए उसका मुकाबला करने के लिए जिस तरीक़े से फोर्टनाइट 11th आवर में ये प्लान बनाकर जो हम आज इस लॉजिंग को हमने हॉस्पिटल में, टेम्पररी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। इस लिहाज से जो हमारे मकासद हैं, हमारे कन्वीनर साहब मोहतशम साहब ने वाज़े किया कि किस मकसद से हमने ये काम किए थे। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसमें हमारे कदम ब कदम, शोल्डर टू शोल्डर, मैं बड़े रेस्पेक्ट के साथ डॉक्टर यूसुफ कुंबले को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को हमारे साथ कहा कि आई एम वन ऑफ यू। ही सेड Bhatkal will be my second house, and he promised that whatever the things will go in Bhatkal, he will monitor very closely and his cooperation 24/7, and this brings us more energy. And we decided to go for this, and we were trying what to do because the things was out of control. और मैं ये साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि इसमें हमें इन काम को करने के लिए यहाँ पर हमारे भटकल के उलमा ने बड़ा साथ दिया, हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ा साथ दिया। उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन कामों को करने में उन्होंने हमें जो साथ दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये टेम्पररी है, दिस इज़ नॉट ए परमानेंट। हो सकता है 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम सपोर्ट करने की खातिर आए हुए हैं और हमको सबका साथ चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर तकरीबन 14 रूम है हमारे पास और 28 to 30 बेड्स हैं। तो उस पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ कम्प्लीटली जो पॉजिटिव सिम्टम्स के हों उनको हम यहाँ पर उन पेशेंट को हम रखना चाहते हैं। और उन पेशेंट का के ताल्लुक़ से ये मेरी आवाम से, भटकल वालों से ये गुजारिश है कि यहाँ भीड़ न करें, यहाँ किसी को अंदर एंट्री नहीं है, बिल्कुल कोई साथ ना आए। हम जो भी हैं डॉक्टर्स होंगे उनका साथ दें, नर्सेस होंगे और जो भी कोऑर्डिनेशन होगा हमारा इंशाल्लाह इंडियाना के साथ है। हमने उनकी गाइडलाइन पर काम करने जाएंगे और अल्लाह न करे अगर किसी को सैचुरेशन कम हुआ और इमरजेंसी की नौबत आई, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। कोई कुंदापुर जाना चाहता हो, कोई उड़पी जाना चाहता हो, या कोई मैंगलोर जाना चाहता हो, या कोई हमारे कॉटेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहता हो, इट इज़ अप टू देम। बट लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या हल्की सी बीमारी में, खांसी, बुखार, सर्दी वगैरह में हो तो बाहर आएँ, बाहर आके बताएं कि भाई हमें तकलीफ़ है, तो हम उनके साथ हैं, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनकी साथ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 एम्बुलेंस आई है, नई एम्बुलेंस हमने अरेंज किया है जो कि इसी हफ्ते और आज से उसकी ओपनिंग है। इस मकसद के लिए समझे कि ये काम कौम के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें आवाम का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो भी अमवात होती हैं, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो हम कर रहे हैं उसमें करते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई कमी, वी विल नॉट कीप अ सिंगल स्टोन अनटर्न, दिस इज़ आवर स्लोगन एंड वी विल गो थ्रू द रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह। एंड अल्लाह ने चाहा तो मैं समझता हूँ ये जो तख़य्युल INF लेके आए थे तो तज़किरा हुआ, बातें हुई, उलमा से भी हमने डिस्कशन किया, डिपार्टमेंट में हम से भी हमने डिस्कशन की, सबकी तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलने से आज आप देख रहे हो कि हम इमरजेंसी को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को हमने सामने रखा है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पब्लिक का, पेशेंट्स का, बाकी यहाँ के जितने हमारे लोकल हॉस्पिटल्स हैं, डिपार्टमेंट का या हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सबका हमें कॉपरेशन चाहिए। हम सबके साथ चलना चाहते हैं, हम इंडिविजुअल नहीं हैं। हम देखिए इसमें हमने बराए नाम हमने किया हुआ है कि भाई कन्वीनर अरशद साहब हैं, मीन जॉइंट कन्वीनर मुझे और हमारे यूनुस काजिया साहब को रखा गया है, लेकिन हम कन्वीनर बराए नाम है, सब कुछ आपके हाथ है। अब देखिए INF है,
और BMKC है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तंजीम आई एम सेइंग कि तंजीम आपके साथ थी, आपके साथ है और इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी। और इस तरह से हमने काम लेके जाना है कि हमें कोई दिखावा नहीं करना है। वी डोंट वांट टू शो ऑफ। बस इतना यह है कि जितना ज़रूरी है, नेसेसिटी है, और ये सिचुएशन के हिसाब से पैंडमिक जो हालात से हम गुजर रहे हैं उसको हम जितना हो सकता है मिनिमाइज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, अरशद साहब ने बताया कि हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो चीज़ें हैं इंसानियत के लिए हम कर रहे हैं और हम साथ हैं, हम सबके साथ हैं। हम ये लेके चलना चाहते हैं कि भाई यहाँ से आदमी सेहत के साथ चले जाए, यहाँ आए और खुशी खुशी चले जाए। और आने का हम इच्छा नहीं रखते, हम आरजू और तमन्ना ख्वाहिश नहीं रखते। हम ये चाहते हैं कि भाई जिनको तकलीफ़ात हो, हल्का सी भी मसला हो तो हम उसको हमें हॉस्पिटल चलाना नहीं आता, हम उस लाइन के आदमी नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के ताउन से, आवाम के ताउन से ये चीज़ पर हमने नज़र की है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये तख़य्युल जो है ये काफ़ी हमारे भटकल को साथ देगा, हमारे कौम को साथ देगा, सोसाइटी को साथ देगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो काम है इस तरह से हम लेके चलेंगे। और ख़ास करके मैं मीडिया वालों से कहूँगा कि लोगों को बाहर लाएं, जिनको भी हल्की सी भी तकलीफ़ात हो बाहर लाएं। बाहर ला के जो भी चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह इस पर इलाज मुआलजा का मामला होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अदा करे। और मैं ख़ास करके हमारे जितने भी मेहमान, हमारे AC साहब आए हुए हैं, DYSP साहब आए हुए हैं, डॉक्टर श्वेता आई हुई है, हमारे काजी साहिबान आए हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुंबले डॉक्टर यूसुफ कुंबले साहब आए हुए हैं, और जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सबका मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। May I call upon our honorable energetic passion? शुरू करेंगे। सबको नमस्कार। अभी पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारा भटकल में जितना सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सपोर्ट हमको कभी भी था, अभी भी है, तो फ्यूचर में भी ऐसा होना के लिए मैं चाहता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से हम ये कोरोना के लिए वो पूरा तैयार है। हमारा भटकल तालुका हॉस्पिटल में 100 बेड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में कोविड केयर सेंटर बना के 100 बेड्स अवेलेबल है। फिर हमारे तंजीम और INF के एफर्ट्स से वुमेंस सेंटर में 180 बेड्स का कैपेसिटी फैसिलिटी रेडी है। उसके बाद भी कोई फैसिलिटी वहाँ कमती ज़्यादा होगा उसके लिए यहाँ अभी एक फैसिलिटी तैयार किया, वो इंडियन हॉस्पिटल को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो बेंगलुरु से यहाँ डॉक्टर्स को यहाँ वाला डॉक्टर्स को ट्रेन करके यहाँ डिप्यूट किया, उससे हमारा लोग के लिए इतना बेनिफिट तो मिल जाएगा। अभी मैं पब्लिक के लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट है, उनका कोई सिम्टम्स है वो तो बाहर आना है, सब हमारा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को आना है, वो टेस्ट करना है। वो करने के बाद यहाँ एडमिशन अवेलेबिलिटी है, उनका ज़रूरत है तो वो ले सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हम कभी भी प्रिपेयर्ड है। जितना लोग आएंगे तो वो सारे लोग को हम ट्रीट करके रिकवर करके वापस भेजने के फैसिलिटीज़ और कैपेसिटी गवर्नमेंट की तरफ भी है। अभी अच्छा चीज़ क्या है तो ज़्यादा केस था भटकल में, अभी कमती होगी, अभी 40-50 पेशेंट्स ही है। तो ऐसा ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड होना चाहिए। वो जल्दी हमारा पॉजिटिव का काउंट कम होना चाहिए भटकल में। इसके लिए पब्लिक का कोऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है। वो अभी नहीं बताएंगे तो वो उनका कम्युनिटी में स्प्रेड होने का चांस भी है। वो जितना जल्दी बताएंगे उतना अच्छा है भटकल के लिए। वो थोड़ा कोऑपरेशन करना है, उनका सारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के तरफ और ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी पूरा हम किया है। वो अभी और एक बार सारे ऑर्गेनाइजेशन को मेरे तरफ गवर्नमेंट की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। आज वाकई हमारे लिए भटकल वासियों के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज कोविड इस बीमारी से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें यहाँ पे आपके सामने बताई गई। ये एक बात मैं आपसे कहूँगा, देखिए एक उसूल है कि प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम लोग एहतियात करेंगे अपनी सेहत के सिलसिले में तो यकीन मानिए
ये फिर डॉक्टर के पास आना, उसके बाद सिम्टम्स का आना, इसकी कोई भी ज़रूरत भी नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि इसकी 3 कैटेगरी, ये सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको खाली आइसोलेशन वार्ड में रख करके जैसे स्टीम वगैरह लेते हैं और इस तरह की चीज़ें वो लोग थोड़ा सा लेते हैं तो रिकवर हो जाते हैं, बस उसका एक है आइसोलेशन। सिम्टोमेटिक जिनके अंदर जो है थोड़ा सा माइल्ड और जो है एंड मॉडरेट सिम्टम्स होता है, तो उनके लिए जिनका जैसे अभी यहाँ पे बातें आई कि सेचुरेशन लेवल, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है बिल्कुल चेक करके वो उसका जो 60-70 के से भी या 80-90 से कम ना हो, तो इसलिए ऐसे पेशेंट के लिए जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हो तो उनके लिए हॉस्पिटल आज बनाया गया है। तो उसके लिए बिल्कुल कोई हेजिटेशन ना हो, आप कुछ भी हेजिटेट ना करें। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स अगर किसी के अंदर हो तो आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे बिल्कुल हम आपसे ये कहते हैं कि बाकायदा जैसे बताया गया क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, हमारे एक्सपीरियंस जो है तजुर्बेकार यहाँ पे सिस्टर्स हैं, नर्सेस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ हमारी यहाँ पे जो टीम है वो 24 आवर्स आपके साथ है। अब आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारी आवाम के ऊपर फैसला है कि आप यहाँ से इस हॉस्पिटल से, या इस हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते, ये जो प्राइमरी कोविड केयर, ये जो हमारा जो सेंटर है, उससे आप कितना बेनिफिट और कितना फ़ायदा ले सकते हैं, ये हमारी आवाम के ऊपर है। ये हमने आपके लिए बनाया है और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि INF जो हमारे पूरे जो इंडिया के जो हमारी मुख्तलिफ जगहों पर जो हमारी जमातें हैं, तो उसका एक विफाक है, एक फेडरेशन है। इस तरह हमारा BMKC भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल जो हमारी गल्फ के कंट्रीज़ में जितनी जमातें हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका अपना एक फेडरेशन है जिसको हम लोग BKMC कहते हैं, भटकल खलीज मुस्लिम काउंसिल कहते हैं। और इसके साथ साथ तंजीम, आपको पता है कि तंजीम यहाँ पे सोशल और जो है पॉलिटिकल, इसमें जो है तंजीम की अपना एक बुनियादी रोल है, उसका अपना एक किरदार है। तो मैं आपसे, हमारे अवामुन्नास से ये पैगाम, आप घरों में आराम करें, घरों में न बैठें। अगर किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स वगैरह हैं, खांसी है, बुखार, इस तरह की चीज़ें, तो फ़ौरन रुजू कीजिए। इंशाल्लाह तो यहाँ पे ये होगा कि आपको यहाँ पे बिल्कुल अगर अर्ली ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो हालत ख़राब नहीं होंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इसी मकसद हमने बनाया है। और एक बार बहुत बहुत आप सबका कि हम आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए। और हमारे मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से, जिस नेक मकसद से हमने इस हॉस्पिटल को बनाया है, उसको आप जितना हो सके लोगों के अंदर जो आम करें। ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है, खौफ और हरास और यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। बहुत अगर थोड़ी सी एहतियात से और थोड़े से इलाज से ये बीमारी इंशाल्लाह जो है एक हम रिकवर हो सकते हैं। दुनिया में, कायनात में, जब से दुनिया बनी है, कायनात में इस तरह के हालात आते रहेंगे। ये निज़ाम क़यामत तक चलता रहेगा। इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे। डरने की, घबराने की, खौफ खाने की, दहशत पैदा करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामूली एक बीमारी है। अगर एहतियात न करें तो फिर उसके बाद मसाइल आते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौके पर कुछ मेरे ख्यालात पेश करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वन एंड ऑल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस वक्त सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके साथ INF और दिगर जो इसमें शरीक हैं उन हजरात का, कि अल्लाह ताला ने आप हजरात को इंसानी हमदर्दी और मखलूक की खिदमत के लिए एक आला काम के लिए मुंतखब किया। ये यकीनन वक्त की ज़रूरत है, भले ज़रा देर से हुई। जैसे फ़ारसी में कहा जाता है, देर आयत दुरुस्त आयत। देर से हुआ लेकिन वक्त पर अच्छा और बेहतरीन इक़दाम है। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए और काम करने वालों में आपसी इत्तेहाद और खुलूस नसीब फरमाए। फरमाया गया, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो दूसरों के लिए बेहतरी चाहे, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इंसान खुदगर्ज हो तो वो इंसान काम का नहीं। अपने पड़ोस में, अतराफ़ में, साथ में रहने वाले अगर मजबूर हैं, बीमार हैं या दूसरे और किसी चीज़ के मोहताज हैं, तो उनका ताउन जो इंसान करता है, ऐसे इंसान को बेहतर इंसान बताया गया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो ये इंसान की बेहतरी के लिए, आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसको सेहत की ज़रूरत होती है, भूखा हो तो खाने की ज़रूरत होती है, नंगा हो तो कपड़े की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो बीमारी कोरोना की शक्ल में आम होती जा रही है,
अब अल्लाह का फजल है, थोड़ा बहुत यहाँ पर उसमें सुधार आ गया है। अब उसके लिए इन्होंने ये हॉस्पिटल कायम किया है। अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए और ऐसा हो कि इंशाअल्लाह कोई इंसान इस बीमारी में आखिरी दर्जे तक न पहुँचे। इब्तिदाई मरहले में जो सहूलियात ज़रूरी थी उस वक्त, लेकिन हो नहीं पाई, इस वक्त हुई। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला इसको तरक्यात से नवाजे और हम सब को मिलकर इंसानी हमदर्दी की तौफीक अता फरमाए। बीमार के लिए यहाँ तक हुक्म है, अगर कोई शख्स इतना सख्त बीमार है कि उसकी जान का ख़तरा हो तो आदमी अपनी नमाज को छोड़कर उसकी मदद के लिए जाए, यहाँ तक हुक्म दिया गया। तो इंसान की जान का बचाना और उसके लिए फ़िक्र करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें समझने की और सारे इंसानों के साथ हमदर्दी की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे इन हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ। मुबारकबाद से पहले शुक्रिया इसलिए अदा किया कि नेमतों पर शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा फरमाते हैं। तो शुक्रिया के साथ इन हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छे और खैर के कामों की तौफीक अता फरमाए। डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन हज़रात ने भी दिनों रात एक करके लोगों को मुसीबत और तकलीफ़ से बचाने के लिए हर तरह के इक़दाम किए और हमारे नौजवान और दीगर हज़रात ने भी इसमें हिस्सा लिया। अल्लाह ताला सब के अमल को कबूल फरमाए और सबको इसका बेहतरीन जज़ा और सिला अता फरमाए। इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ आप हज़रात के शुक्रिया के साथ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-आफ़ियह फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियह फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व अमवालिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन बैनि अयदीना व मिन ख़ल्फ़िना व अन अयमानिना व अन शमाइलिना व मिन फ़ौक़िना व नऊज़ु बिअज़मतिका अन नुग़्ताल मिन तहतिना। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि अद-दयन अन्ना व अनिल मदीनीन वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, इस वक्त तेरे कुछ नौजवानों ने, तेरे दीन के जज्बा रखने वालों ने इंसानियत की भला और हमदर्दी के लिए एक हॉस्पिटल इस वक्त कायम किया है। अल्लाह, इनके इस जज्बे को तो कबूल फरमा, इनके इस अमल को कबूल फरमा, इसमें खैर और बरकत नसीब फरमा। इस तरह के खैर के कामों में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला बना। या अल्लाह, इस वक्त डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हमने यहाँ तिजारत के लिए और माश के लिए इसको कायम नहीं किया, बल्कि इसकी हमदर्दी के लिए, एक इंसानियत की हमदर्दी के लिए किया है। या अल्लाह, इस जज्बे को उनके कबूल फरमा और या अल्लाह बेहतर से बेहतर यहाँ आने वालों का इलाज फरमा। जितने लोग इसके लिए मेहनत और कोशिशें कर रहे हैं उनकी सारी मेहनतों और कोशिशों को तो कबूल फरमा। सही जज्बे के साथ इंसानियत की हमदर्दी हमको नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सबको तो अपनी मारिफत और अपनी रिदा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। तेरे हबीब की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के और खैर के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह, हम सबको तो दुनिया में और आखिरत में दोनों जहाँ कामयाबी नसीब फरमा। इस शहर भटकल की तो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। पूरे आलम के इंसानों की तो हिफाजत फरमा। आपस में मोहब्बत और जोड़ और एगानिगत नसीब फरमा। आपसी दूरी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हर खैर तो हमारे लिए और उम्मत के लिए मुकद्दर फरमा। हर शर से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फज़्ल से कबूल फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलकरीम अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।